Welcome students. Today we are going to start exercise 7.1 of chapter number 7 permutation and combination of class 11. So till now we have understood few example based on the fundamental principle of counting, correct? And today we are going to see how we are going to solve the problem of exercise 7.1. So let's start with the question number 1. As I already told you, in this particular chapter the questions are going to be a word problem. So you need to take care of such kind of a thing, and I will provide a question on your screen, correct? But if you have a textbook, that will be very good for you to see, observe and understand, correct? Let's have a look at first one. How many 3-digit numbers can be formed from the digits? And we have the digits 1, 2, 3, 4 and 5, correct? Assuming that first one, repetition is allowed, and in the second one, no repetition, correct? So how are we going to find a 3-digit number out of these 5 digits, considering repetition is allowed and considering repetition is not allowed? So we want to make a number of 3-digit. So this is how it is going to be, correct? Now the 3-digit number can be odd, even or anything, it can be possible. So I don't have any restriction or limitation कि भाई यहाँ पे 5 ही आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, something like that. So if I want to put out of this 5 over here, so I have 5 ways of putting it over here, correct? First choice. Now second is, we are considering that repetition is allowed, and if the repetition is allowed, that means I can have the same number 1 time, 2 time, 3 time, as many as number we can have, correct? So what does it means? It means that कि अगर मैंने यहाँ पे इन 5 में से कोई एक नंबर यूटिलाइज कर लिया हो, तो वापस वो नंबर जो है वो रिमेनिंग ब्लॉक में आ सकता है. ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड. एंड दैट इज वाई सेकेंड प्लेस फिल करने के भी 5 तरीके और थर्ड प्लेस फिल करने के भी 5 तरीके. सो द टोटल देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज is 5 into 5 into 5. How much 5 5s are 25? 25 5s are 125 ways. Are you getting? So this is how, if the repetition is allowed. But what if repetition is not allowed? So again we want to make a number of 3-digit only, correct? And first place will be filled by 5, correct? Because we have 5 numbers, 5 digits, so I can place any digit over here. But once I put any digit over here, I cannot use that digit again in the remaining blocks, because repetition is not allowed. No repetition. I have written repetition के लिए no repetition, correct? Now as per no repetition, here one of the digit is utilized and which come out of this 5 numbers. So 5 ways. Now I have left with only 4. Then I am left with 3 only. So here required number of ways is 5 into 4 into 3. 5 4s are 20, 23s are 60 ways. See the difference. If the repetition is allowed, we got 125 ways of getting a 3-digit number. But when the repetition is not allowed, we got only 60 ways of generating a 3-digit number out of 5. Are you getting? So this is how we can solve this kind of problem. There is nothing new in this. It's similar to the problem which we used to do for the exercise part or example part, correct? So I hope you are getting it कि इसको किस तरह से हमें करना चाहिए. Am I clear? चलो. Now let's go for the second one. What do we have in second one? Question number 2 says, how many 3-digit even numbers can be formed? Now I guess it is easy to understand के 3-digit even number, because we did somehow something like this as 2-digit even number, so it won't be that difficult. 3-digit even number, and it can be formed from the digits 1 2 3 4 5 and 6, correct? And digits can be repeated. That means repetition is allowed.
इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है. करेक्ट. अगेन द सेम टास्क, 3 digit number, but the important is that it should be even number. And what we did understood for the even number, that unit place placed may be filled by either 2 or 4 or 6, that is 3 ways. सो ये जो यूनिट प्लेस है ना, वो फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 वेज है. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई आई रोट 3 वेज ओवर हियर, बिकॉज द डिजिट विच वी वांट टू जनरेट इज इवन नंबर. करेक्ट. And to get even number, the final digit must be even. Either it should be 2, 4, 6. Because here only we have 3 even numbers, 2, 4 and 6. So out of any of the 3 it can be possible. Correct. But अगर मेरा यहाँ पे unit place पे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, then it is not possible to say that it is a 3 digit even number. करेक्ट. इट विल बी a 3 digit नंबर बट नॉट एन इवन नंबर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसी की वजह से हमारा यूनिट प्लेस जो है वो इस तरह से फिल होगा. नाउ रिमेनिंग 2 प्लेसेस, तो क्या भाई हाँ रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान से देखेंगे वो भी. नाउ अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आउट ऑफ 6 नंबर आई कैन रिप्लेस एनी नंबर हियर, आई कैन पुट एनी नंबर ओवर हियर. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज कितना होगा, 6 into 6 into 3. So 6 6 are 36. 36 into 3, 108 I guess. है ना. 108 वे में हम इस तरह के 3 डिजिट के इवन नंबर जनरेट कर सकते हैं. Am I right? है ना. So I don't think so कि ऐसे प्रॉब्लम हमें अब डिफिकल्ट लगने चाहिए. And yes, continuously keep on thinking by which fundamental principle of counting we are doing this, by addition or by multiplication. So if you observe, this problem is been done by using the fundamental principle of multiplication. Am I right? Simple. So this is how we are supposed to solve. Chalo. Now let's go for the next one, that is question number 3. What do we have in third one? How many 4 letter code can be formed? 4 letter का कोड बनाना है. So that is very very important. 4 letter code can be formed using first 10 letters. ध्यान से देखना, first 10 letters of alphabets. First 10 letters of alphabets, English alphabets definitely. If no letter can be repeated, so no repetition, कोई रिपीटेशन होगा नहीं. करेक्ट. अब 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चलो तो 4 बॉक्स, सीधी सी बात है ना. वी नीड 4 प्लेसेस टू फिल. करेक्ट. आउट ऑफ 10 लेटर्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो सीधे सीधा ये मतलब हो रहा है ना कि अगर कोई एक अल्फाबेट मैंने रख दिया तो दैट अल्फाबेट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द रिमेनिंग बॉक्सेस. करेक्ट. सो टू फिल दिस फर्स्ट बॉक्स आई हैव 10 ways, बिकॉज आई नो दैट आई हैव 10 लेटर्स of English alphabet. Let me write over here English alphabet. Correct. Now out of 10, one of the alphabet is utilized for this first place, then remaining is 9, because that can be the number of alphabets I have left. So I can replace this fill with the help of those 9 alphabets. Again I cannot do repetition, so I left with only 8. Again no repetition allowed, so I am left with 7. Simple. 4 letter words can be generated like this. So the required number of ways is 10 into 9 into 8 into 7. Correct. You can write by using fundamental principle of multiplication. The required number of ways is 10 into 9 into 8 into 7. I hope you people can do this multiplication. Correct. अगर हम करें तो क्या आएगा, चलो चेक करते हैं. और क्या, 8 7 56. 56 into 9. इससे बेटर एक काम करते हैं, चलो वही कर लेते हैं. 56 into 9. 9 4 54. 5 45 and 50. Okay, so it is going to be 5040 ways. कि इतने वे में हम 4 डिजिट का यहाँ पे नंबर बना सकते हैं. Are you getting the idea? So very simple way, easy. Now see, you can understand that to understand those examples, we took little bit more amount of time. Correct. But now as we are looking for this exercise question, we are doing little bit in a quick way, because we got the idea, we got the concept.
है ना. That is why it is helping us to solve this kind of a problem in a little bit quick way compared to the examples. I hope you people are getting these all examples. Otherwise, if you want to write a sentence, you can write it. That unit place is filled by this many ways, tens place, 100 place, 1000 place. But that is unnecessary. You can go for the block. Like that doesn't mean you are simply supposed to put a block and directly write this. You need to write those statements जो मैं कब से लिख रहा था कि required number of ways is this, इस तरह से, है ना. And you can add it something like using fundamental principle of counting or fundamental principle of addition, something like that. So that gives you a good idea. If they ask of a 3-digit even number like we did in the question number 2, so in that you should write a statement like I did over here. If you remember properly, I wrote a perfect sentence that unit place can be or may be filled by either 2 or 4 or 6, because I know all of the number are not going to be helpful me to place that particular unit place. Which numbers are going to be helpful for me to get the required answer? That is even. So 2, 4 or 6. So I get to know that is 3 ways. So that's how you can write a statement if you want in a bit detailed way. Correct. As you can, I can suggest like your school faculty says. Correct, because it is important how they are telling you to write a statement or write a solution. Correct, but the method is same, concept is same, idea is same, everything is remain same rather than writing a statement. उसके अलावा बाकी सब common रहेगा. So there won't be any kind of a difficulties over there. Correct. चलो, now let's go for question number 4. देखते हैं question number 4 ने क्या दिया हुआ है. How many 5-digit telephone numbers? Now I want you to mark this question number 4 as important. It is very important. They ask us how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits. तो पहले तो हमें क्या करना है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. करेक्ट. यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9. अब सबसे सिली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स कैन फॉल फॉर दिस इज they consider 0 to 9 as 9 digits, but actually there are 10 digits. If you want, you can write like this: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So in 0 to 9 we have 10 digits, not 9 digits. Generally हमारा mind ऐसे काम करता है. But why we say 9? Because 0 plus 9 हम सोचते हैं ना कि हाँ 0 में 9 ऐड करेंगे तो 9 digits आते हैं ना. No, 0 itself is considered. And many times I give such examples like if a test match is going to be play from 11 to 15, that doesn't mean कि वो 4 ही दिन हुआ. 11th को भी खेलेंगे भाई वो लोग, है ना. So 11, 12, 13, 14, 15, those are the 5 days. So 11 to 15 का मतलब 4 दिन नहीं होते. Are you getting the point? है ना. So यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है फ्रॉम द गिवन डिजिट 0 to 9, एंड 0 to 9 में टोटल डिजिट्स होगी 10. करेक्ट. इफ ईच नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 6, 7 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब के नो रिपीटेशन. इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो 5 ब्लॉक बनेंगे ना, करेक्ट. Now out of this 5-digit telephone number, question has already told us that if each number starts from 6, 7, कि पहला जो नंबर है वो 6 होगा, दूसरा जो नंबर है वो 7 होगा. प्लीज डोंट कंसिडर these are the ways, these are the already numbers which are going to be fixed. These two numbers are a fixed numbers. So इनको करने का only one way. करेक्ट. ये एक से ज्यादा तरीके से नहीं हो सकता क्योंकि 6, 7 बोल दिया है, फिक्स है, सिंपल. और रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सो आउट ऑफ दिस 10 डिजिट 6 and 7 कैन नॉट बी रिपीटेड. ध्यान से देखना. अच्छा वो ये ऐसे लिखा है, इट विल हेल्प अस. सो 6 और 7 जो है वो हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में कहा है कि स्टार्ट होगा आपका टेलीफोन नंबर 6 और 7 से. 6 सेकेंड इज 7, तो वो दोनों प्लेस फिल हो गई. अब मुझे रिमेनिंग 3 प्लेसेस फिल करनी है, तो उनके वेज जो है ना मैं नीचे लिखूंगा, अंदर नहीं लिखूंगा, सो दैट आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. करेक्ट.
So out of 10 digits, already 2 digits are utilized. Question says no repetition, so I cannot use 6 or 7 in the remaining block. वो कोई और दूसरा नंबर होना चाहिए, but 6 या 7 को छोड़ के. So if we ignore 6 or 7 और neglect 6 or 7, तो कितने digits बचे? 0, 1, 2, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total 8 digits I am left with. Correct. So this particular place can be filled with 8 ways. ये जो है ये वाला कॉलम, दिस पर्टिकुलर वन, ये 8 तरीके से भर पाएंगे. सिमिलरली अब एक यूटिलाइज हो गया, तो इसे फिल करने के लिए 7 वेज, इसे फिल करने के लिए 6 वेज. सो बाय यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेलीफोन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विथ 6, 7 आर कितना होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6. तो 8 इंटू 7 इंटू 6 आप लोग कर सकते हो. 8 7 जा 56, 56 इंटू 6, 6 6 जा 36, 30 एंड इट विल बी 336 वेज. इतने वे में हम 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, कंसीडरिंग फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 6 एंड 7. ये ध्यान रखना. इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको जब पहला एग्जांपल करा था तो कुछ इस तरह से एग्जांपल दिया था. मैंने कहा था कि पहले में आर कंसीडर कर लो, तो रिमेनिंग 3 के 6 तरीके. फिर दूसरा पहला लेटर ओ ले लो, रिमेनिंग 3 लेटर्स के लिए 6. ऐसे करके मैंने आपको बताया था. टोटल आंसर 24 आता है. करेक्ट, बिकॉज द वर्ड इज रोज. आई नो दैट, इसलिए मैं बोल रहा हूं. करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. सो दैट्स वेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कम्स आउट, है ना. अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम में हमें परम्यूटेशन किया या कॉम्बिनेशन किया. तो आई टोल्ड यू हाउ टू थिंक, है ना. जब हम किसी वर्ड को या किसी दिए हुए लेटर्स में से किसी को सिलेक्ट करते हैं, तो वो होता है कॉम्बिनेशन. करेक्ट, कि भाई आपके पास 5 लेटर है, 5 में से 3 आपने सिलेक्ट किए, है ना. आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि ये 3 लेटर से बनेगा या दूसरे किसी 3 लेटर से बनेगा, या वो कॉम्बिनेशन हुआ. लेकिन अगर आपके पास कोई ऑलरेडी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है और उसमें आप रीअरेंज कर रहे हो या अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसे कहते हैं परम्यूटेशन. तो हमने क्या किया यहाँ पे कि भाई हमारे पास इतने सारे नंबर्स है, हमने सिर्फ उन नंबर्स में से 5 डिजिट का एक नंबर बना, मतलब 5 डिजिट के कितने नंबर होंगे वो बनाने की ट्राई कर रहे हैं. करेक्ट, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है. और कंसिडर किया क्या है कि 6 और 7 तो ऑलरेडी हमारा पहले 2 डिजिट है. आर यू गेटिंग, है ना. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक. आपको ये सोचना है कि यहाँ परम्यूटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ. आस्क योरसेल्फ कि यहाँ पे हुआ क्या, है ना. और उसी चीज को हम टैली करेंगे एज वी प्रोसीड इन द चैप्टर विद द फॉर्मूलाज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. आर यू गेटिंग. मैं अभी फॉर्मूला बता के आपके सामने कर दूंगा, तो यू मे गेट कंफ्यूज, क्या ये क्या हो रहा है, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा. आर यू गेटिंग. तो वही सारी चीजों पे हम ध्यान रखेंगे, बट अभी इसको प्रॉपरली समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है. सो आई होप यू पीपल आर गेटिंग कि किस तरह से हमने 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जिसमें स्टार्ट होता है 6 और 7 से, और रिमेनिंग 3 प्लेस हमने फिल की फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं. एम आई क्लियर? सिंपल. चलो, आई होप यू पीपल गॉट दिस, सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. चलो, लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. ध्यान से सुनना, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंस जैसा भी नहीं है, अच्छा है लेकिन फिर भी. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड. आउटकम हमने उसके रिकॉर्ड किए. हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. सो अगर आप सोचने बैठो तो कितने कॉइन टॉस किए हैं? 3 कॉइन. हाँ, अब आउटकम हमें रिकॉर्ड करना है. सो सपोज मान लो 1 कॉइन इज टॉस्ड एट अ टाइम. अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आउटकम्स आर, क्या आएंगे इसके आउटकम्स? हेड और टेल. दोनों में से एक ही आ सकता है ना. करेक्ट, दैट इज 2 आउटकम्स और 2 वेज, है ना. 2 में से कोई भी आ सकता है, लेकिन 2 ऑप्शन तो दोनों रखने पड़ेंगे ना.
अरे गेटिंग? अगर आप चाहो तो वो ट्री डायग्राम से समझ सकते हो। सपोज पहले में हेड आया या फिर पहले में टेल आया। अगर पहले में हेड आया तो दूसरे में हेड या टेल, है ना, और दूसरे में हेड आया तो तीसरे में हेड या टेल, फिर दूसरे में टेल आया तो तीसरे में हेड टेल। करेक्ट? इसी तरह से हेड टेल और हेड टेल। ये आपका 3 बार का टॉस का हो गया कि पहले टॉस में हेड या टेल में से कोई आएगा। पहले टॉस में मान लो हेड आया तो फिर से टॉस किया, उसमें हेड या टेल आएगा। करेक्ट? उसमें अगर हेड आ गया वापस से टॉस, टेल आया वापस से टॉस। तो इस हिसाब से हमें ये बताना है कि कितने हमारे लिए पॉसिबल आउटकम है। तो वही हमने समझने की ट्राई की कि अगर जब हम फर्स्ट टाइम टॉस कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो हमें 2 आउटकम मिलेंगे, हेड या टेल। तो सिमिलरली if 3 coins are tossed, then outcomes are 2 into 2 into 2, that is 8 ways, or let me write 8 outcomes, क्योंकि क्वेश्चन ने आउटकम बोला है तो हम बात करेंगे 8 आउटकम्स। एंड इफ यू वांट यू कैन चेक हियर। देखो ये फ्लो में जाओ तो एक आउटकम होगा हेड हेड हेड, दूसरा आउटकम होगा हेड हेड टेल, तीसरा आउटकम होगा हेड टेल हेड, चौथा आउटकम होगा हेड टेल टेल, पांचवा आउटकम होगा टेल हेड हेड, छठा टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और आठवां आउटकम हो सकता है टेल टेल टेल। दीज आर द 8 आउटकम्स विच आई एम ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर, है ना। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहे, वी अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ अ कंसेप्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, है ना, कि अगर इफ यू टॉस अ 3 कॉइन साइमल्टेनियसली तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। वही सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन से, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा हमें यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन का यूज किया कि भाई एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें 2 आउटकम मिलते हैं, हेड या टेल। तो अगर 3 करेंगे तो हमें 2 into 2 into 2, बिकॉज फॉर ईच कॉइन विल गॉट 2 आउटकम्स, है ना। सो 3 कॉइन्स के लिए 2 into 2 into 2 एंड दैट विल गिव अस टोटल 8 आउटकम्स। एम आई क्लियर? है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये ट्री डायग्राम, बट ये आपको एग्जाम में नहीं बताना है। यू आर सपोज टू डू दिस ओनली, दिस इज जस्ट फ्रॉम माई साइड टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ होता है। करेक्ट? चलो, ओके। So this is how we are solving this kind of a problem, and I guess there's one more in the exercise, and let's see how we are going to solve. Question number 6. Okay, this is the kind of a problem which we already did, but still I'm going to solve it. एक क्वेश्चन के लिए क्या होमवर्क देना? Given 5 flags. So for question number 6, we have 5 flags of different colors. यानी कि रिपीटेशन होने का कोई सवाल ही नहीं आता। 5 अलग कलर के है ना। इवन इफ आई पिक एनी ऑफ द फ्लैग, दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द टोटल 5, सो डेफिनेटली कोई रिपीटेशन नहीं होगा। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग? कितने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं जिसमें 2 फ्लैग हो, वन बिलो द अदर। सो समथिंग लाइक दिस, वी डिड समथिंग लाइक दिस, करेक्ट, है ना। अब मेरे पास 5 अलग अलग है। यू कैन टेक अ कलर रेड, ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो, बिकॉज ब्लैक एंड ब्लू का दोनों में बी आता है, so देयर इज नो मीनिंग ऑफ राइटिंग ब्लू। सो लेट्स से रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो। सिंपल। नाउ आउट ऑफ दिस 5, मुझे यहां पे एक फ्लैग रखने के लिए कितने तरीके मेरे पास अवेलेबल होंगे? सो आउट ऑफ दिस 5, आउट ऑफ दिस 5, मैं यहाँ पे 5 वेज में कोई भी एक रख सकता हूं, एनी वन ऑफ देम। इट डजंट मैटर कौन सा फ्लैग रखा है, बट आई कैन पुट एनी वन ऑफ देम। नाउ इट इज सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अभी भी स्टार्टिंग में भी बोल गया इस क्वेश्चन में, कि इफ वन ऑफ द फ्लैग इज फिल्ड ओवर हियर, पुट ओवर हियर, then I am left with only 4 flags because I have only 5 flags and all of them are of different color. ऐसा नहीं है कि रेड फ्लैग की ऐसे मतलब 5-7 रखे हुए हैं, ब्लैक 5-7 है, व्हाइट 5-7 है, ऐसा नहीं, only one of each. If I put one of the flag over here, then there is no same colors flag is present over here, correct? तो बचे 4, वो 4 रखने में से कोई एक यहाँ रखेंगे तो उसके तरीके होंगे 4. So total number of ways कितने होंगे? 5 into 4, that is 20 ways, जिसमें हम 2 फ्लैग का सिग्नल बना सकते हैं।
different signals can be generated अगर each signal requires the use of 2 flags, 2 फ्लैग की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने एक एग्जांपल किया था, आई गेस फोर्थ वन, दैट वाज द बेस्ट एग्जांपल टिल हियर। क्यों? क्योंकि उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन along with that fundamental principle of addition that also to utilized, है ना? याद हो तो एटलीस्ट 2 फ्लैग के लिए हमने किया था। सो somehow this is I can say one of the case of that particular problem कि एक सिंपल से 2 फ्लैग वाला, करेक्ट, एक के नीचे दूसरा रखना है, 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग से, तो डेफिनेटली है कि रिपीटेशन होना पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स। एम आई क्लियर? So I hope that you understood the whole exercise in a bit of a good way. I won't say कि ऐसा इतना डिफिकल्ट था कि बहुत ज्यादा मेहनत करके हमने समझा। इट्स इजी, बट इजी हमें तब लगेगा जब हमने एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा फोकस ज्यादा दिया हो तब। इफ एग्जाम्पल्स आर नॉट बीइंग डन प्रॉपरली देन दिस मे यू फील लिटिल बिट डिफिकल्ट। एम आई क्लियर? So if you do still understand this particular problems, then please give your feedback by pressing a like button, and if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe it. It will help only, correct? आपको कोई नुकसान तो होगा नहीं, आपको फायदा ही होगा अगर मैं जैसे जैसे नए नए वीडियोस अपलोड करूंगा। So you people get the updates, okay सर ने ये नया वीडियो अपलोड किया है, and it is of our class, so we should watch it, correct? So thank you so much for watching.